Assalamu alaikum viewers, it's me Junaid Akram Khan once again available here for you to make another video. And today the video is very important, very special, very interesting and very close to my heart. So that is why I would like to request everyone to watch this video till the end. And I hope that everyone is fine and enjoying of good health. And today the topic and video is also for the respected parents, that how can the parents choose the particular profession of their children, and how can they secure and build the bright future of their beloved ones, their children. So as per my view, that every parent should select the profession of their children right from the beginning. Why? As I have quoted you, an example of Chinese nation in my last video, that 40 years before they have started working on their children, on their youth, so that they can have better results in the future. So you know it very well that they became nowadays the second largest economy in the world. So that is why it is very important to educate your children, to make the mindset of your children so that they can achieve the required target. So I would like to give you an example of another nation. You know that Jewish are just like 70 to 80 lakhs in all around the world. पूरी दुनिया में जो Jewish हैं उनकी total जो आबादी है वो 70 से 80 लाख से ज़्यादा नहीं है. But they control the entire world. The entire banking system is under strong control of the Jewish community, and you know that the well-renowned multinational companies are also owned by the Jewish community. Why? Because they are, the nation who build and raise their children right from the beginning. You know that they just teach their children tirandazi, ghudaswari, swimming, and many other things. And you know that they do not raise their children for the job. When someone to have their degree, they have to earn like $10,000, and they have to submit, they have to show it to their to their institution that they have earned $10,000. And after that, the bank statement in which they prove it that they are able to earn $10,000, then they have their degree. So they do not let their nation to do the job and to do the trivial things in their life. They make their nation, they make their children to do something special in their life, and that is why they are have hold in the entire world. The thing is that हर कोई सोचता है पाकिस्तान में कि हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अदारे जो हैं पाकिस्तान के वो जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए. हमें सेहत की जो है वो मसले मसाइल हैं, हमें तलीम के जो है वो मसले मसाइल हैं. उसके अलावा भी देर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स. सो until or unless we don't give our nation an inspiration, why they have a solid education, why they have a proper education in order to achieve the required target. So parents, the selection of the profession of your children should be based on your experience, on the available resources, and on the abilities of your little champion. So it is, please keep remember it, and इस चीज़ का एहसास पैदा करें अपने अंदर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि until or unless you won't raise your children for the country, so that they can do something good for the country, हम लोग इन मसले मसाइल से नहीं निकल सकेंगे. तो it is totally parents' responsibility to raise your children with an encouragement, with an inspiration to improve something, to make a better system, and to do something to improve your country's economy and everything. So like for example, if you raise your children and build the future of your children as a doctor, so when you will make a doctor and he will your child will start his or her profession, he will start earning. So what it is, he just earn the money and increase his or her bank balance, and that is it. Until or unless your child will not perform something special
for humanity. You know that, keep remember one thing, that humanity is greater than anything in this world. I mean, अल्लाह ने भी इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद यही था कि आप अपने लिए तो सोचें, लेकिन इसके साथ साथ आप इंसानियत का भी सोचें। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो आजकल आपको देखने में मिलेगी कि एज एवरीवन नो दैट देयर इज़ अ शटडाउन एंड लॉकडाउन सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री, और मुल्क में बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस सिचुएशन एवरीवन इज़ जस्ट locked in their houses. So ये जो जज्बा है जो हमें आजकल देखने में मिल रहा है डॉक्टर्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में, कि ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर इस वबा से जो है वो जंग लड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू सेव देयर कंट्री, इन ऑर्डर टू सेव द पीपल ऑफ देयर कंट्री। तो एक्चुअली जो विजन है, जो सोच है, जो नज़रिया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि हम लोगों को हर तरह के मसले मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। तो हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स अनटिल और अनलेस, अगर जब तक हमें यूनिटी नहीं आएगी, जब तक हम लोग अपनी ज़ात से निकल कर इंसानियत का नहीं सोचेंगे, द वे आई मीन इफ द डॉक्टर जस्ट वो सिर्फ अगर अपनी जो है वो फिजिक्स के बारे में सोचता रहे और अपनी ज़ात के बारे में सोचता रहे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता रहे, तो वो डॉक्टर जो हैं दे कैन नॉट फाइट विद द कोरोना वायरस सिचुएशन, दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19 वायरस। तो जब तमाम डॉक्टर्स मिलके, तमाम जो मुतलका कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिलके एक मसले के खिलाफ, एक मुश्किल के खिलाफ जब इकट्ठे होकर जो है वो लड़ते हैं, तो दे आर सक्सेसफुल टू ऑब्टेन देयर टारगेट। सो ये नज़रिया, ये विजन जो है वो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ हर पाकिस्तानी में, कि अपनी ज़ात से निकल कर सोचें, अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के लोगों का सोचें। क्योंकि अगर डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल अपने मुल्क का आज नहीं सोचेंगे, अगर दे विल नॉट कंट्रोल एंड दे विल नॉट फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस सिचुएशन, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी नहीं बचेगा, सब इस वबा की लपेट में जो है वो आ जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन चांस है हम लोगों के लिए, एक बेहतरीन सीख का मौका है, लर्निंग, देयर इज़ अ चांस ऑफ लर्निंग, कि हम सीख रहे हैं कि हम लोग अपनी ज़ात से निकल के एज अ ह्यूमन बीइंग जब ह्यूमैनिटी का सोचते हैं, जब तमाम इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर एज अ कौम हम एक अजीम कौम बन जाते हैं। फिर हम एज अ कौम दुनिया में एक प्रोमिनेंट कौम के तौर पे, एक कामयाब कौम के तौर पे उभरते हैं। बात हम इस तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के बेहतरीन लोग कौन हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम एक ही चीज़ जो है वो दुआ जो है वो मांगते हैं कि ए अल्लाह, हमें भी उन लोगों जैसा बना जिन पे तूने अपनी नेमतें बख्शी, जिन पे तूने अपनी अनायतें जो हैं वो की। और वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं, वो 1,24,000 पैगंबर हैं who spent their life for humanity and who spent their life to spread the education of Islam to the nation, to the human beings. So उन्होंने अपनी ज़ात पे तकलीफ़ें सहकर, अपनी ज़ात पे तनकीदें सहकर, अपनी ज़ात के साथ कंप्रोमाइज़ करके इंसानियत का सोचा, दूसरों का सोचा, जिसमें से जो है बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है, जो ह्यूमन एट्रीब्यूशन का मुजाहरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो आज तक कोई जो है वो नहीं कर सका। तो अल्लाह के नबी ने इस्लाम की, दीन की हिफाजत के लिए जंगें भी लड़ी, लोगों को, इंसानियत को, अवाम को, कौम को अल्लाह का दीन भी पहुंचाया, और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी स्पेंड की, कारोबार भी किया, और अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो भी उसने सलूक जो है वो, उसकी मिसाल जो है वो कायम की। आई मीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंटेन की, हर रिश्ते की जो रिस्पेक्ट है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंटेन रखी, एक मिसाल कायम की, जो कि हमारे लिए आज अमली जो है वो नमूना है। और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीख कर अपने आप को उस सांचे में डालकर एक अजीम कौम जो है वो बन सकते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द बर्थडे पिक्चर ऑफ माई बिलव्ड सन Mustafa Junaid Khan, so that I can show you that how I am inspiring and encouraging my son to become an army officer. और इसके साथ साथ I would like to request everyone to watch a very beautiful drama
named Ahd Wafa, which has been produced with the cooperation of Pakistan Army ISPR. और ये ड्रामा जो है ये बेस्ड है एक लाजवाब दास्तान है दोस्ती की, मोहब्बत की, पेरेंट्स की काविशों की, अनथक मेहनत की और मुल्क से मोहब्बत की. So I just want everyone to watch this drama. Every single episode is very interesting. So just have a look into the short clips of the birthday pictures and drama. So I'll be right back with you. मेजर हुमायूं, अभिनंदन, क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? I am not supposed to tell you that, Major. You are supposed to tell me everything, Wing Commander. मैं बाथरूम जाना चाहूंगा, मेजर. अभी से? आप उस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते हैं. We are ready with the fantastic tea, sir. ना यार, मुझे नहीं. हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें, वो रौनकें, वो मस्तियाँ. आज आपका अदब करने का बहुत दिल कर रहा है. जरूर कोई बात मनवानी होगी. How did you do it? मतलब this is pure love. तेरी एक अदा के नाम किया सब दे वफा के नाम किया. तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है. शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी. जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए. जब तक जिंदा हूं तुम यहाँ रहोगे. मैं कश्मीर जा रहा हूँ. नाजरीन, इस वक्त मैं LOC से चंद 100 मीटर के फासले पर हूँ और जो आप सामने चोटियां देख रहे हैं, जंग मुंह के जोर से नहीं बल्कि जज्बे और ईमान से लड़ी जाती है. They try to fight with us. We will surprise them. इस दफा सरप्राइज नहीं, शॉक देना है साथ. कोई डर? No, sir. कोई शक? No, sir. I said fire! चाहे अपनी जान भी जाए. जी तो viewers, I hope that you have liked the birthday pictures and like the video as well. So the thing is that why I have selected, why I want my son to become an army officer, just because that I have found that the Pakistan Army is the most organized फॉर्म इन पाकिस्तान. क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ कि पाकिस्तान को जब भी मुश्किलात आती हैं, जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है, तो ये एक ऐसा वाहिद इदारा है जो हर मुसीबत की घड़ी में, चाहे सैलाब आ जाए पाकिस्तान में, चाहे ज़लज़ले आ जाए पाकिस्तान में, चाहे किसी वबा से जंग लड़नी हो और चाहे बॉर्डर पे मुल्क का दिफा करना हो, ये एक ऐसा वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान को हर मुश्किल से जो है वो मुश्किल में फ्रंट से लीड करता है, चाहे दहशतगर्दी से निपटना हो. सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट माई सन टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस Pakistan Army, and that is why I do love my Pak Army, because ये जो पाकिस्तान आर्मी के तलीमी अदारे हैं, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, स्कूल एंड कॉलेजेस, ये बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड जो है इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो 100% जो है वो सिक्योर होता है. whether they go to another profession, the future, I can assure you the future of your children will be very secure, in the institution of, owned by the Pakistan Army. So I think that कि जब आप कोई भी तलीम जो है वो हासिल करते हैं, तो तलीम हासिल करने का मकसद एक तो इंसान में शऊर आता है, और उसके बाद आप किसी ना किसी प्रोफेशन से जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं. आप जो है वो जॉब करना शुरू कर देते हैं या आप अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं. तो मैं समझता
समझता हूँ कि जॉब में भी और बिजनेस में भी देयर आर सेवरल चैलेंजेस विच विल यू हैव टू फेस, और जो है वो उसमें ये है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो आप बिजनेस करते हुए गुजार देते हैं या जॉब करते हुए गुजार देते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं। आप सिर्फ जो है वो एक पैसा जो है वो कमाने की अर्ज जो है वो आप में रहती है। लेकिन अगर आप जो है वो इफ़ यू विल बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो आपका एक एक कदम, आपकी एक एक सांस जो है वो सवाब में गुजरेगी, बिकॉज यू विल स्पेंड योर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर कंट्री, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर the people of Pakistan. So I have heard someone that Pakistan Army, every muhafiz is just like a security guard. So I do believe that everyone is an army officer. As a parent, हर बाप जो है अपने बच्चों का मुहाफिज होता है, हर भाई जो है वो अपनी बहन का मुहाफिज होता है, हर हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, हर डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट्स का मुहाफिज होता है, हर उत्साहदा जो है वो अपने स्टूडेंट्स का, अपने जो है वो बच्चों का जो है वो तालिब इल्मों का जो है वो मुहाफिज होता है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अवाम की मुहाफिज होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क का जो है वो मुहाफिज होता है। तो एवरीवन इज अ पाक आर्मी, एंड आई जस्ट वांट टू रेज a point over here which is very important कि तलीम के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी के जो तलीमी इदारे हैं, वहाँ पर मुल्क से मोहब्बत जो है वो एजुकेट की जाती है, ताकि जो है वो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोग जाते हैं तो आप एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं, आप अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों का जो है वो सोचते हैं। तो तारीख भी सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो ह्यूमैनिटी का सोचते हैं, जो इंसानियत का सोचते हैं, जैसा कि आप अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि द वे ही स्पेंट हिज लाइफ, आज तक हम उन्हें याद रखते हैं। जिस तरह आप अपने अजीम जो लीडर हैं, हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द वे ही स्पेंट हिज लाइफ, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट लायर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड जहाँ पर इंग्लैंड में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहते थे, दैट his house was the most expensive house and in the most expensive area, so he has just left his luxurious life for the people of for the Muslims। और जिस तरह फिर आपको पता है हिस्ट्री का कि जो है वो अंग्रेज़ों से जो है वो आज़ादी हासिल की गई, उसके बाद एक आज़ाद मुमलिकत के लिए जो वो जद्दोजहद की गई, और वो ही जस्ट सेक्रीफाइस ऑल हिज लाइफ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इन ऑर्डर टू अचीव दिस ब्यूटीफुल लैंड पाकिस्तान। तो ये जो है एक ख्वाब था जिसकी ताबीर जो है वो हकीकत में जो है वो बदली गई, और ये एक मेहनत और लगन के साथ जो है मुल्क हासिल किया गया। तो आज जितने भी मसले मसाइल हम लोग देख रहे हैं, महंगाई के मसले मसाइल हैं, सेहत के मसले मसाइल हैं, तलीम के मसले मसाइल हैं, तो इन मसलों से हम लोग तभी निकल सकते हैं जब हम लोग एक होकर जो है वो सोचेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ टोटली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने बच्चों को जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग they should encourage their children, they should make their mindset that they have to achieve a very special targets in their life, and they have to do something very special for the humanity. So I would like to inform every parent that you should choose the profession of your children, and what is the reason behind it, कि जो कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को जब इंस्टीट्यूशन में अर्ली एजुकेशन के लिए भिजवाते हैं, then they have typical life experience, practical life experience, due to which this experience can help them that which profession exactly suits to the abilities of their children and exactly suits to the available sources you do have. आसान लफ्ज़ों में इस तरह बता देता हूँ कि जब माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन जो तलीमी इदारे हैं वहाँ पे भिजवाते हैं, तो पेरेंट्स को पता होता है कि उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो कितने हैं, और अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल लाइफ they have spent, they can better decide that which profession exactly suits to their children. They know that कि उनका बच्चा जो है उसमें क्या abilities हैं, उसकी speaking
स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, या वो डॉक्टर अच्छा बन सकता है, या वो अकाउंटेंट अच्छा बन सकता है, या वो इंजीनियर अच्छा बन सकता है, या वो मुहाफिज अच्छा बन सकता है. So according to the experience and according to the available resources and according to the abilities of your children, parents can better decide that which profession exactly suits to their children. So parents should decide first of all the right profession for their child, and I do not want that parent just impose the particular profession they like, or according to the parents the profession is good for their children. But if the children want to change the profession and want to do something else, then the child have to prove himself or herself in another profession. He have to perform well in another profession, so that they can convince his or her parent that he can perform into another profession. So first of all parents को decide करना चाहिए, और अगर बच्चे का जो interest है वो उस particular profession में नहीं है, तो then बच्चे को prove करना है अपने आप को. Like I'm just going to quote you an example. If the parents want their child to become a doctor, but he want to be a cricketer, then he have to prove himself as a cricketer that he's a good cricketer in the domestic cricket. He have to perform well, so that their parents can change their mind and give him a permission that you can go and play for the cricket for the nation. So these are all the things which I want to share with you. और एक बात जो मैं हर parent को चाहूँगा कि अपने every parent should keep these things in their mind, keep remember it that के इज्जत, रिज़्क़, ज़िंदगी, मौत, ये सब चीज़ें वो हैं जो अल्लाह के हाथ में हैं. इंसान सिर्फ कोशिश करता है और फिर कामयाबी जो है वो अल्लाह देता है. तो हमें सिर्फ जो है वो कोशिश करनी है, हमें सिर्फ जो है वो अंत तक मेहनत करनी है, हमें सिर्फ एक अच्छी सोच डेवलप करनी है, एक अच्छा विजन देना है बच्चों को. लाइक बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं जी पढ़े 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 पढ़े, क्या पढ़े, किस लिए पढ़े, मतलब it's very boring concept के just you have the books and you have the exams and just you have to clear the exams. There is no encouragement, there is no inspiration in it. So I just want parents to please inspire your children for an education, so that they can understand that कि वो क्या पढ़ रहे हैं. इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि it is the social responsibility and ethical responsibility of every parent to educate their children. जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आपके बच्चों को आप जो है वो तहजीब सिखाएंगे, जब आप अपने बच्चों को महज़्ज़ब बनाएंगे, then they will perform the exceptional in their profession. Like आपका बच्चा अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, आपका बच्चा अगर किसी भी सरकारी महकमे में जॉब करता है, या डॉक्टर बनता है, या इंजीनियर बनता है, he have that courage कि he is doing something for his country, not for himself. जब तक आप अपने बच्चे को अपनी ज़ात से निकल के इंसानियत के लिए कुछ करना नहीं सिखाएंगे, we will not be able to obtain the required target. We can हम दुनिया में कभी भी compete नहीं कर सकेंगे दूसरे मुल्कों को, हम दुनिया में कभी भी ये कामयाब कौम के तौर पे उभर के नहीं आ सकेंगे. तो हमारे ये शिकवे ताहयात ऐसे ही रहेंगे कि यहाँ पे कुछ बदल नहीं सकता. बदलेगा तब जब हम अपने घर से शुरू करेंगे, और we have to start it from the very beginning, from the early age of our children. We have to educate them, we have to give them a right direction कि you are a nation leader, you have to do something very special for your nation. जब हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करेंगे, then they will perform, then they हम उनकी abilities जो है वो बुरे कर ला सकेंगे in order to become the number one nation in the world. So viewers, it's enough from my side, and I hope that you like the video, and if you like it, please share and spread it as much as possible, so that the maximum number of people can watch it. And you take great care of yourself. Have a very good day. Goodbye.